Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic of science, that is force and laws of motion, right? And yesterday we discussed about Newton's first law of motion. That was like this: the Newton first law of motion states that the body continues to be a state of rest or of uniform motion unless any external unbalanced force acts on it. It was a very simple idea that anything won't change unnecessarily. There should be something as an unbalanced force is acting on it. So that's what we discussed. It was related to inertia, so that's the reason we discuss about inertia as well. What is inertia? Inertia is nothing but a tendency of body to maintain its motion or the state of rest. We call it as inertia. And of course inertia depend on the mass. That was a very important point we discussed. There are so many questions which the answer is this, that the inertia is directly proportional to the mass. So keep that in mind, that the inertia is directly proportional to the mass. If the mass is more, the inertia will be more. Of course, there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So that examples we have discussed, and based on this also there are so many different questions we will be answering: the inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. And after that we shortly discussed about momentum is nothing but mass into velocity. What is momentum? Mass into velocity. तो mass का यूनिट होता है kg एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. सो मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड. इट इज डिनोटेड बाय पी. दैट्स इट. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बेसिकली लेट मी टेल यू, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द फोर्स आर रिलेटेड. जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया इज रिलेटेड है ना. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया इज रिलेटेड, वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड force is related. So let us see what is it. It is directly giving us the definition of the force. The Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it takes place in the direction in which the force is acting on it. बहुत weird सा कुछ है ये. I'll tell you that कि force acting on the any object is nothing but depend on the rate of change of momentum. Momentum कितना change हुआ वाइल अप्लाइंग दैट फोर्स. बॉडी ने कितना मोमेंटम चेंज किया उसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है. ओके, सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट व्हाट ही हैज़ डिस्कस. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. ओके, इज सेइंग दैट द फोर्स जो होता है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पहले देखते हैं क्या होता है. मोमेंटम होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है. इमेजिन करो कि ये एक कार है. द कार is striking on a particular stone. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, हम लोग ऐसे देखते हैं. कार इज स्ट्राइकिंग ऑन अ स्टोन एंड द कार इज स्ट्राइकिंग ऑन अनदर कार. सेम कार. दिस इज मूविंग. द वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एट रेस्ट. ये जीरो पे है. ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन. फाइन, ये क्लियर हो गया. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ द कार इज मूविंग, इट्स वेट इज अराउंड अबाउट 100,000 kg. सॉरी, तो 1000 kg है. तो इसका मोमेंटम जो अभी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. मास इंटू वेलोसिटी है मोमेंटम. तो kg मतलब वो जो भी है 1000 इंटू 10, तो 10,000 होगा इसका मोमेंटम. सो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, मतलब इन द बिगनिंग मोमेंटम है, उसको हम लोग P1 बोलते हैं. ये 10,000 kg मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज प्लेस इज लेस. और इसका भी, द सेकेंड वाले कार का भी मोमेंटम जो P1 है वो कितना है, 10,000 kg मीटर पर सेकेंड है. जब दिस कार स्ट्राइक्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोन, ये जो पर्टिकुलर स्टोन है, इस स्टोन पे जब वो स्ट्राइक करेगी, तब डोंट यू थिंक कि कार विल कम सडनली एट द रेस्ट. दैट मीन्स इसका जो velocity होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग इट ऑन द ग्राउंड वुड बी ज़ीरो. सडनली इट विल बी ज़ीरो. तो ज़ीरो हो जाएगा एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये ज़ीरो हो जाएगा तो मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी, आई विल बी कॉलिंग इट एज P2. देखो, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम. तो मास तो 1000 kg ही रहेगा. आपको सम ब्रेकेज होगा बट ठीक है, हम लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं. लेकिन मास इंटू वेलोसिटी इज ज़ीरो, तो P2 विल बी ज़ीरो. अभी मुझे बताओ, isn't it the momentum has changed from 10,000 to directly zero, right or no? Isn't it? So the strike or the hit will be really too much.
इफ दिस पर्टिकुलर मोमेंटम इज चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी क्विक, देखो 10,000 टू डायरेक्टली जीरो, ये क्विक चेंज इन द मोमेंटम है, तो ये जो स्ट्राइक होगा, जो फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टोन होगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. Compared to that, now this car is striking on this particular car, which is moving with it 5 meter per second. Of course, when it strike on this, it has got some motion, so suddenly momentum won't drop to zero, but yes, speed will drop to round about maybe 7 or 8. 7 हम लोग देखते हैं. तो isn't it P2 is going to be of this car itself, ये भी इसी कार का. आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट दिस कार. तो इसी सेम कार का जो P2 है वो कितना हो गया, इमेजिन करो कि 7,000 kg मीटर पर सेकेंड हो गया P2. तो कितना चेंज हुआ, सिर्फ 3,000 चेंज हुआ. ओके, आई कंपेयर टू इट इज 3,000 चेंज हुआ. डोंट यू थिंक कि इन दिस केस द स्ट्राइक और द फोर्स विल बी, फोर्स अप्लाइड बाय दिस कार विल बी लेसर दैन द अबव. तो ये जो होगा ये बहुत ज़्यादा फोर्स होगा ऊपर वाला, और ये जो होगा ये बहुत कम होगा. सो दिस प्रूव्स दैट द चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force. The force applied is nothing but directly proportional to the change in the momentum. So I repeat again, Newton's second law of motion, we have to remember it. Newton's second law of motion said that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and it takes place in the same direction which the force is acting. Of course, the direction, force is a vector quantity, as we all know. That's the reason we need to even talk about its direction. So the direction will remain same how the force is acting. तो हम लोग उसको थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करते हैं, किसको, फोर्स को. तो हमने ये सोचा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1, है ना. ये देखा हमने अभी P2 माइनस P1 इज नथिंग बट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ऑफ कोर्स व्हेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन होता है उसको हम लोग इक्वल टू साइन में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग सम कांस्टेंट. रिमेंबर दैट हिंसफोर्थ यू विल बी डूइंग दिस सो फॉर सो मेनी टाइम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे फोर्स चेंज होगा वैसे ही मोमेंटम का रेट भी चेंज होगा. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग सम कांस्टेंट P2 माइनस P1. लेकिन ये जो P2 माइनस P1 है ये चेंज इन द मोमेंटम है, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है. ठीक है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. देखो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इट इज V2 माइनस V1 अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, S अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, याद रखो इसको. तो रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम. तो द फोर्स इज नॉट जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 but rather upon time. The force is directly proportional to rate of change of momentum का मतलब होता है it depend on the time as well. ठीक है, तो अब अभी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि फोर्स इक्वल टू, हम लोगों को पास कांस्टेंट आ गया P2 माइनस P1 अपॉन T. तो ये कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग हो सकते हैं, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, वो बहुत अलग क्वेश्चंस के लिए डिपेंड रहती है. बट इस क्वेश्चन के लिए ये 1 है, the k is equals to 1. So if you take or if you don't take 1 and all same. ठीक है, then we have force is equals to k into P2. क्या होता है, P2 is mass into velocity V2 minus mass into velocity V1 upon time. I hope you understand कि V2 and V1 I have changed because there is a change in the velocity, but mass remains same because it's of the same object. So now force will be equal to k into mass, I can take common, V2 minus V1 upon time. तो force will be equal to k into mass. तो V2 minus V1 upon time, V2 minus V1 क्या होता है, upon time क्या होता है, acceleration. तो mass into acceleration. Okay. K normally comes equals to 1 as a constant of proportionality. Constant of proportionality. Remember it, how it has come 1, that I won't be telling you right now, but हाँ, keep in mind कि k is equals to 1 in this case. तो हमारा फॉर्मूला जो आता है वो होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर फोर्स. सो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेशन ऑफ प्रूविंग
force is equals to mass into acceleration. Okay, can we prove it? चलो तो देर किस बात की है, तो स्टार्ट करो प्रूविंग कि कैसे प्रूव करते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वी हैव गॉट राइट नाउ ऑल दैट इन फ्रंट ऑफ यू. तो ऑफ कोर्स आई विल बी इरेजिंग इट. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. और यहाँ पे क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कैसे करेंगे देखो, यू डिसाइड. अभी अभी हमने किया राइट, ये रहा डेरिवेशन. ठीक है, कैन यू डू दैट? चलो आगे बढ़ते हैं. डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, डिराइव द फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकंड लॉ. ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे. हाँ, लेकिन व्हाट वी अंडरस्टूड इज नथिंग बट अबाउट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो व्हाट इज फोर्स? तो बहुत सारी चीज़ें देखी. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन ऑफ द फोर्स. क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है वो चेक करते हैं. अभी चेक करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा फोर्स जो है वो क्या हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया. तो यूनिट देखते हैं. मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ये लिखना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजंट इट? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयरफॉर व्हाट वी स्टार्टेड कॉलिंग दिस एज न्यूटन. ओके, सो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर itself is equals to 1 न्यूटन. ओके, क्लियर? गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं. सो दैट्स अ न्यूटन. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व न्यूटन का जो n है वो स्मॉल है बिकॉज इट इज यूनिट नॉट अ नेम. So whenever the name itself is given as a unit, we write that in the small letter so that we understand it is unit, not a name. Okay, but when we write single n, then we write it as a capital. Okay, remember that. Force is of course a vector quantity, right? Very interesting point about force one should understand. Force is directly proportional to the momentum, change in the momentum, but inversely proportional to the time. देखो, time is in the denominator. That means अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा. आई रिपीट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. एज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है और इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है, इसके रीजंस कहाँ लिखने हैं, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग, डोंट वरी. लेकिन फोर्स क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो गया, इतना याद रखो. तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का मतलब वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा. इनवर्सली मतलब उल्टा बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ा तो वो कम होगा, वो कम होगा तो ये बढ़ेगा. मतलब क्या होगा? इफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब इफ टाइम इज रिड्यूसिंग द फोर्स विल बी मोर, एंड इफ टाइम इज इंक्रीजिंग द फोर्स विल बी लेस. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखना इसको. ओके, तो 4 पॉइंट अबाउट फोर्स एवरीवन अंडरस्टूड. ओके, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हमने देखा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम. आपने देखा होगा कि व्हाइल कैचिंग अ बॉल, द क्रिकेट प्लेयर क्या करते हैं? हाथ को ऐसे नीचे खींचते हैं. ओके, हाथ को नीचे खींचते हैं, डायरेक्टली बॉल को कैच नहीं करते. डायरेक्टली बॉल को कैच नहीं करते. डायरेक्टली बॉल को कैच करेंगे तो क्या होगा? एंड हाथ ऐसे नीचे खींचने का मीनिंग क्या है, मतलब उसका फ़ायदा क्या होता है? चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. देखो, ये बॉल ऊपर से आ रहा है, ये भी बॉल ऊपर से आ रहा है. इस बॉल को मैंने डायरेक्टली इधर ही पकड़ लिया, इधर ही पकड़ लिया, और इस बॉल को पकड़ने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ से नीचे हाथ को खींचा एंड बॉल को इधर पकड़ लिया. माई हैंड्स आर नॉट दैट गुड, दीज आर हैंड्स बाय द वे. नीचे खींचा, ठीक है. Now what is happening when I stop the ball here itself? The time required to reduce the speed 0 is very less. Suddenly the speed has dropped. तो आपको हाथ जो है बहुत ज़ोर से लगेगा. But whereas here in this case it is taking some more time to do that. It is taking some more time to reduce its speed to 0. यहाँ से हमने शुरू किया और नीचे खींच लिया. That means it is taking some more time to reduce its speed, right? That means the time will be more in this case. Time more. Or in this case, what is happening? Time is less. Okay? So the change of momentum is in the less time,
and the change of momentum is in the more time. As the change of momentum is in the more time, change of momentum in the more time, it reduces the force, the action of force. ओके तो हमारे हाथ को जो है वो ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, द बॉल ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? आई रिपीट अगेन, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो लेस टाइम में अप्लाई कर रहा है, द चेंज इन द मोमेंटम जो होता है वो लेस टाइम में है, मतलब सडन चेंज इन द मोमेंटम है, तो हो क्या रहा है, ज़्यादा जोर से लगेगा, द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल विल बी टू लार्ज. वेयर एज in the second case, as the hands are taken backward, hands are moved ahead, then that will take more time to reduce the speed of the ball to zero, and that impact will be less. सिर्फ इतना ही नहीं है, you must have observed that high jumpers के लिए ऐसे ऐसे cushions होते हैं, you must have observed that, okay, ऐसे cushions होते हैं. आपका वो बंजी जंपिंग वाला नहीं होता क्या, वो भी उसी कैटेगरी का होता है. ठीक है, हम लोग हाई जंपर्स कर लेते हैं, तो ये है हाई जंपर्स का पोल, इस पोल के ऊपर से गिर के इसके ऊपर गिर जाते हैं बच्चे, तो कॉम्पिटिटर्स. एंड ये है ग्राउंड, टार रोड है ये, ओके, रोड है. तो इफ आई से दैट के वन फेलो इज जंपिंग फ्रॉम हाइट एंड वन अदर फेलो इज जंपिंग फ्रॉम दिस हाइट ऑन दिस पर्टिकुलर कुशन एंड वन इज जंपिंग ऑन द रोड, हु विल बी गेटिंग हर्ट मोर? ऑफ कोर्स द फेलो हु इज ऑन द रोड. लेकिन द वन हु इज़ जंपिंग ऑन द कुशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ मैट, जंपिंग मैट, वो क्या होगा, उसके ऊपर गिरेगा एंड थोड़ा सा नीचे चला जाएगा. आई होप यू नो दैट, थोड़ा नीचे चला जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स दैट फेलो विल टेक सम टाइम टू रिड्यूस इट्स स्पीड, वेयर एज द फेलो इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड विल बी सडनली रिड्यूस इट्स स्पीड. ओके, सो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है, लेस है, बहुत कम टाइम में उसका स्पीड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. और यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, more है. So it is taking time, some more time than this to reduce the speed. So when the time is more, the force impact will be less, as force is inversely proportional to the time. बात समझ में आ गई? So very simple, so very simple. Okay, simple logical. देखो, while catching a cricket ball, the fielder moves his hand backwards so that it increases the time, and impact of force is reduced as force is inversely proportional to the time. A long jumper is provided cushion of sand. Okay, long jumper है, high jumper भी होता है by the way. Long jumper is provided cushion of a sand instead of directly jumping on the road. तो sand क्या करती है, दो चीज़ें करती है. sand क्या करती है, सबसे पहले जो मोमेंटम है वो रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा टाइम देती है. सो इट टेक्स टाइम टू रिड्यूस द स्पीड, रिड्यूस द force, reduce the momentum. As the time it is taking time, it taking more time, the force will be less, as force is inversely proportional to the what? Force is inversely proportional to time. Seat belts in the car. Even seat belts uses the same kind of principle, same kind of principle, that it holds you back. It holds you back, and when there is a sudden jerk, your body is not quickly pushed towards the steering or towards the wall. Okay, you are hold for a while with the seat belt, and it is giving you time, the time, and the impact of force will be reduced compared to the direct impact of the force, right? So these are the few examples of Newton's second law of motion, right? अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत इजी एग्जाम्पल्स है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं. ओके, what force would be needed to produce acceleration? A is given 2 meter per second square and mass m is given 6 kg. तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 6 इंटू 2, 12 न्यूटन. फिनिश्ड. ईजी है ना, बहुत ईजी है ना. चलो नेक्स्ट वन. वेट, ज़्यादा फास्ट मत जाना भाई. ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय 12 न्यूटन? अभी ये तो सिंपल है. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स 12 न्यूटन, मास 3 kg, एक्सेलरेशन नहीं पता तो शिफ्ट कर दो 3 को इधर, डिवाइड हो जाएगा. 4 इज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत सिंपल सी बात थी.
राइट, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. कैलकुलेट द फोर्स required to impart to a car of velocity दी है 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड. तो velocity इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. ओके, इम्पार्ट टू velocity मतलब क्या हुआ, कार इज एट द रेस्ट. ओके, एंड इट इज एक्चुअली रीचिंग टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड. तो u विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड v विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. तो फ्रॉम 0 टू 30 जाने के लिए इट हैज़ टेकन 10 सेकेंड्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट. ये देखो यहाँ पे द मास ऑफ द कार इज दिस वन. द m इज गिवन, m इज इक्वल टू 1500 kg. आपको तो पता ही होगा कि जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू वो है मास इंटू एक्सलरेशन. तो मास इंटू एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है, यस v माइनस यू अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, v माइनस यू. तो 30 माइनस 0 मतलब 30 अपॉन टाइम इज 10. ठीक है ना. तो वी हैव 1500 इंटू 30 अपॉन 10 इज 3. तो इट इज़ 4500 न्यूटन इज़ माई फोर्स अप्लाइड. कितना सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. आगे बढ़ते हैं. अ फोर्स ऑफ n 5n गिव्स अ मास 4 kg and acceleration of this one. The force of 5 Newton gives a mass of 4 kg acceleration gives a mass of 4 kg and acceleration of this one, and mass of 2 kg and acceleration of this one. What acceleration would it give if both masses are tied together? ये क्या बात होगी भाई. कुछ तो गड़बड़ है. हाँ, I got it. See, ये फोर्स गिवन नहीं है. अ फोर्स gives a mass of 4 kg and acceleration of 8 meter per second square, and mass of 2 kg and acceleration of 2 meter per second square. What acceleration would it give if both masses are tied together? कुछ तो एरर है क्वेश्चन में. ठीक है, हम लोग इसको नहीं करेंगे अभी राइट नाउ. ओके, देखता हूँ मैं. लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली द एरर इज इन दिस केस एंड देन विल डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कुछ तो गड़बड़ है फोर्थ क्वेश्चन में. गड़बड़. विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो फोर्स हमें फाइंड करना है दोनों का. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास क्या है 10 ग्राम, वो तो केजी में नहीं है, तो 10/1000. याद रखो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है. एक्सेलरेशन इज 5. ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 0 गेट कैंसिल, 0.01 इंटू 5 एंड दैट विल बी 0.05 भी कर सकते हैं, विच इज़ इन न्यूटन. एंड सेकेंड फोर्स, इसको F1 नाम देते हैं, इसको F2 नाम देते हैं. ओके, इट इज़ मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास कितना है 20 ग्राम है, तो 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन है 2. तो 0 गेट कैंसिल, तो बेसिकली इट इज़ 0.02. आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड दैट into 2, and this is going to be 0.04 Newton. So we have here F1 and F2, and it is very clear from it the first one takes more force, greater force. Okay, it's very easy, isn't it? So very simple. तो complete करो इस exercise को with some questions. तो हम लोग अभी देखते हैं next वाला. ये है टेक्स्ट बुक के questions. Which of the following has more inertia? Okay, inertia is more if the mass is more. तो rubber ball or stone of same size और a bicycle, हाँ अच्छा, rubber ball and a stone of the same size. तो stone का होगा because stone has got more mass. A bicycle and a train का होगा inertia because train has got a more mass. 5 rupee coin and 1 rupee coin. 5 rupee coin because it has got a more mass. That's it. So very easy. Mass पे depend करता है ना. In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball changes. Football player kicks the ball. Another player of his team who kicks the ball towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the ball and kick it towards the player of his own team. अरे बाप रे, तो ये सिंपल है. हाउ मेनी टाइम द
velocity change, it's very clear, you can easily identify it, and the agent as well. Okay, I don't have to tell you that. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. You see, the leaves has got its own inertia. So when we vigorously shake its branch, so what happens here is those leaves will have a phenomena of inertia of rest. So due to the inertia of rest, the leaves will remain at the same position and it gets detached from the branch itself. Okay, so it is basically because of inertia of the leaves. Okay, the inertia of rest, because they are at rest, and when you are vigorously shaking it, it opposes the sudden change in the motion, and accordingly that leaves will fall down. Why do you fall forward, uh, forward direction when a moving bus brakes to stop, and fall backward when it accelerates from the rest? We have discussed that it is first one is moment of inertia of motion, due to inertia of motion, and second one is due to inertia of rest. Okay, so basically what happens is when you are in the bus and bus is moving, suddenly bus stops, then you continue your motion due to the inertia of motion, and that's the reason you feel like, yeah, that you are pushed forward. Okay, and the same thing happens to when suddenly bus gets accelerated, you are at the rest, so you have an inertia of the rest, and when the bus moving, your body resists to do the sudden change, and that's the reason you are pushed backward. So very simple, है ना? A constant force acts on an object of 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 to 7. Find the magnitude of applied force. ये very easy है, कुछ नहीं, acceleration निकालो and find करो. तो ये very simply you can do it. Okay. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? Okay, चलो मैं इसको solve करता हूँ. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा समय देखने के लिए ही अच्छा लग रहा है. देखो, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं. ओके, एक फोर्स है जो कांस्टेंट फोर्स है, अप्लाई हुआ है 5 kg को, जो 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया है. तो मास इज 5 kg, टाइम इज 2 seconds, एंड दिस वेलोसिटी इज u is equals to 3 meter per second and v is equals to 7 meter per second. Find the magnitude of force applied. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि 5 kg इंटू एक्सेलरेशन इज v माइनस यू. चेंज इन द वेलोसिटी 3 to 7, तो 7 minus 3 upon 2, राइट. तो 5 इंटू 7 minus 3, 4, 4 upon 2 is 2, 2 into 5, 10 Newton. Find the magnitude of force applied. तो हो गया 10 Newton. Now if the force was applied, मतलब वही force अप्लाई किया है, वही force is applied for the duration of 5 seconds. The same force is applied for the duration of 5 seconds. Okay, 5 सेकेंड की ड्यूरेशन के लिए हमने क्या किया, अप्लाई किया. ठीक है, तो टाइम इज 5, मास रिमेन सेम. ओके, तो नाउ मास इज गोइंग टू बी 5 kg, फोर्स इज गोइंग टू बी 10 Newton. तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज 10, मास इज 5, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. तो इन केस व्हेन द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी क्या करना है देखते हैं, यहाँ से आगे करते हैं. एक्सेलरेशन जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, अभी क्या हुआ है देखो, पहले जो उसका स्पीड था वो तो 3 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही है. एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, टाइम इज गिवन, कितना दिया हुआ है टाइम, 5 सेकेंड्स का. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. टाइम इज़ गिवन, एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड नहीं करेंगे यहाँ पे, मुझे लगता है एक्सेलरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आई जस्ट टेल यू 2 मिनट गिव मी. हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे. देखो, फोर्स आई हैव गॉट विच इज़ 10 Newton. ठीक है, अभी देखो एक्सेलरेशन हम नहीं यूज़ करेंगे,
यू दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 3, वी जो है वो नहीं पता हम, तो इसको वी कंसिडर करते हैं. टाइम इज गिवन एंड फोर्स इज गिवन विच इज 10 न्यूटन एज वी सी हियर, एंड मास इज गिवन विच इज 5 kg. ठीक है, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई विल बी यूजिंग इट टू द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है, तो फोर्स कितना है मेरा 10 न्यूटन है, मास कितना है 5 kg है, वी कितना है पता नहीं, यू कितना है 3, अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड. ठीक है, तो 5 उधर चला गया, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 10 इज इक्वल्स टू वी माइनस 3. माइनस 3 इधर गया, 13 इज इक्वल्स टू वी, तो 13 मीटर पर सेकेंड. तो उतना ही फोर्स अगर अप्लाई किया, बट टाइम इज मोर, दैट इज 5 seconds. Try to understand, time is more, that is 5 seconds. Then don't you think the velocity will be more? Yes, and that's what it is happening. It is changing from 3 to 13. देखो कितना सिंपल, देखो एक ही फॉर्मूला है जो ये वाला अप्लाई हम लोग कर रहे हैं, है ना. एक ही फॉर्मूला बार बार वही अप्लाई कर रहे हैं, है ना. इजी. चलो ये भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते होते हैं. तो देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या टेक्स्ट बुक का. ये है विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, यही तो हमने किया था, है ना. ओके, a motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 108 इंटू कुछ तो हम लोग कैसे 5/18 करते हैं, तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड. बराबर है, तो करना मत भूलना 5/18. इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक. तो ये आ गया मेरा u एंड द v विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. 18 6 ये 30 आता है, 30 मीटर पर सेकेंड. तो 30 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड उसने कितना टाइम लिया, द टाइम इज़ 4 सेकेंड. ठीक है, ओके. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑफ द मोटर कार इफ इट्स मास इज 1000 kg. तो आपका जो फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको तो वो पता है, तो चल ही गया. मास है 1000, एक्सेलरेशन जो होगा v माइनस यू अपॉन टाइम t. तो 1000, v कितना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस u कितना है 30 है, अपॉन टाइम कितना है 4. तो ये तो हो गया क्लियर. बस हाँ, आंसर निगेटिव आ रहा है, एंड दैट्स ट्रू. आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है वो तो आपको पता है, क्योंकि द फोर्स व्हाट इज एक्टिंग हियर इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. रिमेंबर दैट. फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो कार रुक रही है, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव. उल्टा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इट इज़ नॉर्मली, तो इट इज़ नेगेटिव. तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव होगा. 4 1 4, 25 100, 250 एंड माइनस 30 जो भी होगा 750, 7500 ऐसे कुछ तो आएगा आंसर, and that too minus, and that too in Newton. Finished. So very simple. Okay, I hope you can do all these questions. तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. देखो ये है वो क्वेश्चन जो हमने हाँ यस वही है जो हमने वो नहीं किया था. यू रिमेंबर दैट, ये वही क्वेश्चन है, वही है. ओके, देखते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. और फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब फोर्स दिया है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, मास का पता नहीं क्या है, m1, एंड एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मास फाइंड कर सकते हैं हम लोग इन दिस केस. तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. 5 इज इक्वल्स टू मास इंटू 10, तो 1/2 विल बी इक्वल टू मास 1/2 kg m1, एंड m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर, मतलब फोर्स सेम है. फोर्स इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स सेम है 5 न्यूटन. m2 कितना है, m2 तो पता नहीं, m2 ही तो फाइंड करना है, इंटू एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1/4, दैट इज m2. ठीक है. व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, मतलब मास दोनों कंबाइन हो गए. ओके, नाउ m1 प्लस m2 वुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4. ओके, दैट विल बी 3/4. चेक कर लो इसको, इंटू 2 किया तो 2 + 1 3, 3/4 kg आ गया. बराबर है ना. अभी इन दोनों को मिला के मुझे फोर्स तो वही है, फोर्स इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स कितना है 5 न्यूटन ही है. m1 प्लस m2 कितना है 3/4 है, इंटू एक्सेलरेशन.
तो 5 4 से 20, तो 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू माई एक्सेलरेशन, ये आ गया। तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ यू वांट इट टू बी इन अ डेसिमल देन 36.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। डिवीजन, सिंपल सा डिवीजन, ठीक है, गॉट इट। ऑफ कोर्स द एक्सेलरेशन ओवर हियर इज़ लेस दैन द एक्सेलरेशन बाय द वे ऑफ बोथ द केसेस। मतलब पहले वाले का एक्सेलरेशन 10 था, दूसरे वाले का 20 था। ये ऑफ कोर्स कम होगा बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर टाइड टुगेदर एंड मास इज मोर, तो एक्सेलरेशन कम ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। देखो कितना इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना कंप्लीट कर दो। क्या क्या करना है आपको मैं बोलता हूँ। इसको आपको सारे न्यूमेरिकल्स इसमें से सॉल्व करने हैं। एट द सेम टाइम ये जो क्वेश्चंस फ्रॉम द एट द सेम टाइम डेरिवेशन कंप्लीट करना है, ये वाला डेरिवेशन जो डिराइव फार्मूला यूजिंग सेकंड ऑफ मोशन कंप्लीट करना है। बहुत काम है, आई नो दैट। एंड ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं जो टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन के आंसर लिखो एंड सारे न्यूमेरिकल्स जो भी है वहाँ यहाँ तक कंप्लीट करो। ये हम लोग कल देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी ईजी है, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन कल देखेंगे। इफ़ यू वांट टू ट्राई, गिव अ ट्राई, यू कैन गिव अ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो थैंक यू सो मच। कल हम लोग ये देखेंगे एंड देन टॉपिक को एंड कर देंगे। हो गया, देखो टॉपिक कितना सा सिंपल सा टॉपिक था। ओके, एक्सरसाइज को लेकिन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो। होमवर्क को लेकिन कंप्लीट करना, मुझे सेंड भी करना आज के आज ही, ठीक है। पता नहीं कब ये वीडियो आज जाएगा बिकॉज आई नो इट इज़ टेकिंग टाइम। प्रीवियस वीडियो ऑल्सो टुक लॉट ऑफ टाइम टू get it uploaded, so it is taking time, तो देखते हैं।